is Radhika Kaur with the session number 5 of your chapter How do organisms reproduce. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about artificial propagation of plants. हमने अभी स्टडी किया था इन सेशन नंबर 4 में about vegetative propagation in plants. यहीं पे अब हम जो artificial propagation है plants का वो कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. So let's start a session with artificial propagation of plants. The process of growing many plants from one plant by man-made method is called artificial propagation by plant. Artificial से obviously you have clear that artificial mean man-made. तो वो process जिससे हम काफी सारे plants को एक ही plant से grow कर पाए by using man-made methods of propagation is called artificial propagation of plant. Clear that the process of growing many plants from one plant by man-made methods is called artificial propagation of plants. Actually, a number of methods of artificial propagation of plants are used in agriculture and horticulture. एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों ही में काफी सारे नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशंस के मेथड यूज होते आए हैं. तो अभी हमें वही स्टडी करना है कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उनमें हम कैसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन को अपने वेज में लाते हैं, कैसे उसे यूज कर पाते हैं. क्लियर? There are three common methods for the artificial propagation of plants and they are cutting, layering and grafting. तीन कॉमन मेथड होते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के. पहला होता है कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग और थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग. अभी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग तीनों के प्रोसेस क्या होते हैं और कैसे हम इन प्रोपगेशंस को कर सकते हैं. कटिंग क्या होता है? एज यूजुअल यू नो दैट कटिंग में क्या होगा, ऑब्वियसली किसी नाइफ के थ्रू या किसी टूल के थ्रू हम प्लांट को कट करेंगे. सिंपल सा. So cutting क्या है? A small part of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called a cutting. Cutting क्या होता है? प्लांट का वो स्मॉल पार्ट जो हमें किसी भी प्लांट को कट करके गेन किया होता है उसे हम कटिंग बोलते हैं. क्लियर? That a small part of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called a cutting. Clear? कोई भी प्लांट का पार्ट जिसे हम कट करके रिमूव किया हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? उसी को हम कटिंग बोलेंगे. Is that clear to you? Next thing is that a cutting may be a piece of stem, root or even a leaf. जो कटिंग है वो स्टेम की, रूट की या लीफ की, किसी की भी पीस हो सकती है. Clear? That cutting may be a piece of stem, root or even a leaf. While making a cutting, care should be taken to see that there are some words on it. जब भी हम किसी कटिंग करते हैं, कोई भी कटिंग कर रहे हैं हम, तो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जो कटिंग है उस पे कुछ वर्ड्स प्रेजेंट हो. Clear? That while making a cutting, care should be taken to see that there are some words on it. Actually, in this method, a cutting of the parent plant having some words on it is taken and its lower part is buried in the moist soil. इस मेथड में क्या होता है कि जो भी पेरेंट प्लांट है उसकी कटिंग ली जाएगी. उस कटिंग को क्या करेंगे हम, जो कटिंग होगी ऑब्वियसली उस पे कुछ वर्ड्स प्रेजेंट रहेंगे. उस कटिंग को हम क्या करेंगे, उस कटिंग का जो लोअर पार्ट है उसे हम मॉइस्ट सॉइल में बरी कर देंगे. क्लियर? That in this method, a cutting of the parent plant having some words on it is taken and its lower part is buried in the moist soil. Clear? After few days, the cutting develops roots and shoots and grows into a new plants. कुछ दिन बाद क्या होगा, जो कटिंग है वो रूट्स में, शूट्स में डेवलप हो जाएगी और क्या होगा, उसके बाद ऑब्वियसली वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगी. Also, cutting are the means of asexual reproduction in plants. Cutting क्या है? Cutting के थ्रू ऑब्वियसली क्या है, asexual reproduction शो कर रहा है. That is जो parent plants है उससे हम एक new plants का formation करते हैं by using its cutting. Clear? The new plant formed from a cutting is exactly similar to the parent plant. जो भी new plant form होगा cutting के थ्रू वो exactly similar होगा to the parent plant. Clear? So what we have learned? That after burying cutting into the soil,
cutting develops into roots and shoot and grows into a new plant which is exactly similar to the parent plant. And the plants like rose, grapes, bananas and cactus etc. can be grown by means of cutting. जितने भी हमारे plants होते हैं जैसे rose plants हुए, grapes plants हुए, bananas हुए, cactus हुआ, इन सबके plants की cutting लेके हम normally क्या कर सकते हैं, इनकी cuttings के through हम उन्हें grow करा सकते हैं. Clear? So you have understood about cutting. Cutting में क्या होता है, एक plant है, old plant है, उसकी cutting लेंगे, root ले सकते हैं, I mean to say उसकी stem ले सकते हैं या leaf ले सकते हैं, even उसकी bud ले सकते हैं. उस कटिंग को हम सॉइल में बरी करेंगे, सॉइल में बरी करेंगे, उसके बाद वो डेवलप हो जाती है इनटू अ न्यू प्लांट. क्लियर? सो इट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. कटिंग के बाद हमारा सेकंड मेथड आता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का, लेयरिंग. क्लियर? लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, leaving the tip of the branch exposed above the ground. You have to understand in a better way. इस मेथड में क्या होता है, कोई भी प्लांट है उसकी एक ब्रांच को हम नीचे खींचेंगे, ग्राउंड की तरफ पुल करेंगे. पुल करने के बाद उस पार्ट को हम मॉइस्ट सॉइल में कवर कर देंगे, लीविंग द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड. सिर्फ जो ब्रांच है उसकी जो टिप है वो ग्राउंड के अबव एक्सपोज्ड रहेगी. क्लियर? हमने क्या किया, हमने प्लांट की ब्रांच को जो सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल है, उसमें पुल करके वहां पे उसे बरी कर दिया. क्लियर? That in this method a branch of the plant is pulled towards the ground and a part of it is covered with the moist soil, leaving the tip of the branch exposed above the ground. Clear? After some time, new roots develop from the part of the branch buried in the soil. कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी. कहाँ से, जो पार्ट हमने सॉइल में बरी किया वो वही ब्रांच के पार्ट से जो रूट्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी. ब्रांच इज देन कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. उसके बाद क्या करेंगे, जो ब्रांच है उसे हम पेरेंट प्लांट से कट कर देंगे एंड पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच हैज डेवलप्ड रूट्स ग्रोस टू बिकम अ न्यू प्लांट. और वही पार्ट प्लांट का जिसकी रूट्स डेवलप हुई है वही क्या करेगा, वही न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेगा. क्लियर? क्या करा हमने एक प्लांट की ब्रांच ली, ब्रांच को पुल करके उसे ग्राउंड में बरी कर दिया विदाउट कटिंग इट. क्लियर? प्लांट में की जो ब्रांच है उसको बिना कट किए हमने उसे ग्राउंड में बरी कर दिया, जिस सॉइल में बरी कर दिया. आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि जो बरीड ब्रांच है उससे जो रूट्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई. रूट डेवलप होना स्टार्ट हो गई, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो ऑब्वियसली जो प्लांट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया. इसीलिए जो पेरेंट प्लांट था उससे हमने जो ब्रांच है उसको कट कर दिया. तो पेरेंट प्लांट तो एक प्लांट है ही, उसके साइड में एक डॉटर प्लांट भी फॉर्म हो गया which is exactly similar to the parent plant. The layering method is used for the propagation of plants like jasmine, strawberry, lemon, guava, hibiscus etc. तो जो लेयरिंग मेथड है वो हम किसके प्रोपगेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारा जैस्मीन हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, लेमन हुआ, गुआवा हुआ, हिबिस्कस हुआ, ऐसे प्लांट्स के लिए हम लेयरिंग यूज करते हैं. तो हमने ऑब्वियसली कटिंग के बारे में स्टडी कर लिया, लेयरिंग के बारे में स्टडी कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट ग्राफ्टिंग. Grafting is a method in which the cut stem of two different plants, one with root and other without root, are joined together in such a way that the two stems join and grow as a single plant. समझ में आया? ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो प्लांट्स की कटिंग्स लेते हैं. क्लियर? दो प्लांट्स की स्टेम्स लेते हैं. जो स्टेम्स होती हैं एक विद रूट्स होती है और एक विदाउट रूट्स होते हैं. क्लियर? इज अ मेथड in which cut stems of two different plants are joined. उनको क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ और इस वे में ज्वाइन करेंगे that the two stems join and grow as a single plant. क्लियर? हमने क्या किया, दो प्लांट लिए, दो प्लांट से हमने दो स्टेम्स कट की. जो स्टेम्स होंगी एक की रूट्स होंगी और एक की रूट्स नहीं होंगी. दोनों को हम ग्राफ्ट करेंगे. ग्राफ्ट करेंगे दैट इज दोनों की स्टेम्स को हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन ऐसे करेंगे कि वो एक साथ ग्रो होंगी. ठीक है, दो ब्रीड एक साथ एक ही प्लांट्स पे हमें देखने को ग्राफ्टिंग के थ्रू मिल जाएंगी.
अब बताते हैं स्टॉक क्या होता है। द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जो कट स्टेम होता है प्लांट का, मैंने बताया ना अभी आपको कि जो प्लांट है उस दो तरीके की लेते हैं हम स्टेम। एक स्टेम ऐसी होती है जिसमें रूट्स प्रेजेंट होती है और दूसरी पे रूट्स प्रेजेंट नहीं होती। तो वो स्टेम जहाँ पे रूट्स प्रेजेंट होती है उसे हम स्टॉक बोलते हैं एंड इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? एंड नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वेन। जो स्क्वेन होता है वो क्या होता है? द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट। दूसरा जो कट स्टेम होगा दैट इज जिनमें रूट एब्सेंट होंगी, जो रूट जिसमें नहीं प्रेजेंट होंगी उस स्टेम को हम स्क्वेन बोलते हैं एंड स्क्वेन इज द अपर पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच मे हैव लीव्स ऑन इट। ये जो होता है अपर प्लांट्स होता है प्लांट का, ठीक है, जिसमें लीव्स प्रेजेंट हो सकती हैं। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्राफ्टिंग। नाउ द थिंग इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग है उसके एडवांटेजेस क्या होंगे? Actually, it enables us to combine the most desirable characters of the two plants in its flowers and fruits. ये क्या करती है? ये क्या करती है? जो दो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके जितने भी हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकती है। जैसे उसके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हुए उनको वो कंबाइन करके वहां पे हम ग्रो करवा सकते हैं। By grafting, a very young squame can be made to flower and produce fruits quick fast when it is grafted to the stalk of the mature plant. यदि हम किसी भी यंग स्क्वेन को किसी भी मैच्योर प्लांट के साथ ग्राफ्ट करेंगे तो जो यंग स्क्वेन है, जो अपर पार्ट है, वो इजीली फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। Also, it can be used to produce varieties of seedless fruits. जितने भी हमारे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनकी भी वेराइटीज को प्रोड्यूस करने के लिए ग्राफ्टिंग हेल्पफुल रहती है। So these were the advantages of grafting. Now the thing is, what are the advantages of artificial vegetative propagation? जो artificial vegetative propagation होता है उसके advantages क्या होते हैं? First, similar character of parent and new plants. अब artificial propagation में क्या होगा? vegetative propagation जो होता है, जैसे हम artificially जो man-made propagation होता है उसमें भी जो parents हैं उन्हीं के जैसे न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं। दैट इज जो पेरेंट प्लांट्स हैं उन्हीं के सिमिलर कैरेक्टर वाले न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। द फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम सीड्स मे टेक मैनी इयर्स बिफोर दे स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स, बट द फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम कटिंग और बाय ग्राफ्टिंग स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स मच अर्लियर। जितने भी हमारे फ्रूट ट्रीज हैं जिन्हें हम सीड्स की हेल्प से ग्रो कराएंगे उन्हें काफी टाइम लग जाता है फ्रूट्स बेयर करने में। उसका सिंपल सा रीजन है कि यदि पहले हम सीड को जर्मिनेट कराएंगे, सीड को सो करेंगे, सीड को स्टोइंग के बाद में फिर हम उसको वाटरिंग करेंगे, उसके बाद में कहीं जाके जो सीड है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा, फिर कहीं जाके उससे प्लांट फॉर्म होगा, फिर जब जाके हमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बट ऐसा यदि हम कटिंग या ग्राफ्टिंग का मेथड यूज करके करें तो जो फ्रूट ट्रीज हैं वो इजीली जो फ्रूट्स हैं उन्हें फ्रूट्स जो फ्रूट ट्रीज हैं उनपे जो फ्रूट्स हैं वो काफी अर्लियर फ्रूट्स आने लग जाएंगे। क्लियर? दैट the fruit trees grown from cutting or by grafting start to bear fruits much earlier in respect to the fruit trees grown from seeds. Clear? So the next thing is that the plants grown by vegetative propagation usually need less attention in their early years than the plants grown from seeds. जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो होते हैं उन्हें लेस अटेंशन की जरूरत पड़ती है, उन्हें ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जो प्लांट्स सीड्स के थ्रू ग्रो कराए जाते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाना पड़ेगा, फिर जो सीड्स है उनको उनकी सोइंग होगी, फिर उनको फर्टिलाइज करना पड़ेगा, उनको फर्टिलाइज करने के बाद फिर उनकी केयरिंग करनी पड़ेगी, उसकी केयरिंग के बाद कहीं छोटा सा एक हमारा प्लांट निकल के आएगा जिस तब जाके वो एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट होगा। बट यदि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज कर रहे हैं तो इजीली हम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं और वहां पे ज्यादा अटेंशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। Also, many plants can be grown from one parent plant by artificial propagation. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के थ्रू सिर्फ एक ही प्लांट के थ्रू हम काफी सारे प्लांट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। We can also get seedless plants by artificial propagation. जितने भी हमारे seedless plants होते हैं, that is जो seeds नहीं देते, अब उनका प्रोडक्शन कैसे होगा? वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? तो उनका प्रोपगेशन कैसे होता है? वो कैसे फॉर्म होते हैं?
वो इजीली हमारे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के थ्रू हम उन्हें फॉर्म कर सकते हैं. So these were the advantages of artificial propagation. Now it's a time for checking out your remembrance. Actually, just few minutes ago I told you about advantages of grafting. Now it's your turn to revise them. So today's challenging question mark is, what are the advantages of grafting? Grafting के advantages क्या होते हैं? Your time start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, it enables us to combine the most desirable characters of the two parts, I mean to say two plants in its flower and fruits. इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ग्राफ्टिंग होता है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो प्लांट्स के जो फ्लावर्स, फ्रूट्स और जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, जो ब्रीड है, उनको कंबाइन कर सकते हैं. By grafting, a very young squame can be made to flower and produce fruits quick fast when it is grafted to the stalk of mature plant. Simple सा है कि कोई भी young squame जो है वो काफी जल्दी अर्ली स्टेज में फ्लावर्स प्रोड्यूस करने लगेगा, फ्रूट्स प्रोड्यूस करने लगेगा, यदि हम उसे किसी भी मैच्योर प्लांट के साथ ग्राफ्टिंग करा दें उसकी. क्लियर? क्योंकि सीड्स के थ्रू करेंगे तो सीड्स को काफी टाइम लगता है, जबकि अब हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो इजीली हम ज्यादा जल्दी जो फ्रूट्स हैं उन्हें गेन कर सकते हैं. ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स. जितने भी हमारे सीडलेस फ्रूट्स होते हैं वो भी हम ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि जो सीडलेस फ्रूट्स हैं वो ऑब्वियसली जिन प्लांट्स पे सीड्स नहीं आते तो उनका हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो उनका फॉर्मेशन भी हम ग्राफ्टिंग के थ्रू कर सकते हैं. क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है उसके बारे में डिस्कस किया. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में हमने कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस किया. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.